کرم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم سر آپ کی دو تین چیزیں میں بڑی مس کروں گا. ایک تو 3 بجے آپ کا جو مجھے فون آتا تھا نا یار کدھر ہے, میں کہ سر میں سویا. وہ یار آپ سوئے ہوئے ہیں, 3 بجے آپ سوئے ہوئے ہیں. میں کہ سر میں کم کریں گے, کیا کیا کام ہے یار. وہ فلاں کام میں لیٹر آیا ہوا یار, میں نے آپ کو واٹس ایپ بھی کیا, آپ نے دیکھا نہیں یار, کمال ہوگی. میں کہ سر حکم کریں گے. اور یار تسی ہوں چھڈو, یہ آخری سینٹینس ہوتا ہے سر, تسی ہوں چھڈو تو سویرے کل تسی 9 بجے میرے کول ہو دفتر جاؤ گے. انسان بڑا تب بنتا ہے جب وہ بڑی باتیں کسی کی وہ ہضم کرتا ہے. تنویر اختر خان صاحب کے آنے کے بعد کم از کم 3 سال سر یہاں پہ رہے ہیں, کسی ایک بندے کو ان سے تکلیف نہیں ہے. تنویر صاحب کی آج ریٹائرمنٹ کا ڈے ہے, تو میں بینگ اے سبارڈینیٹ اپنے خیالات بتانا چاہوں گی. میرا ڈپارٹمنٹ سپورٹس کا ہے. اس حوالے سے گاہے بگاہے سر سے ملاقات ہوتی رہتی تھی میری اپنے سپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے. تو عورت ہونے کے ناطے یا فیمیل سٹاف ممبر, اور وہ کروائے گی بھی گیم سپورٹس سائنس کالج کے لیے, شاید یہ بڑی نئی چیز تھی اور مجھے خود کو پروف کرنا تھا. میرے اس چیز کو پروف کرنے کے لیے اگر مجھے بہت زیادہ سپورٹ ملی تو وہ پرنسپل تنویر خان صاحب تھے. سر آپ کا بہت شکریہ. رہی نے درد جاں پیاروں کی ہجرت, پیاروں کی ہجرت, رہی نے درد جاں پیاروں کی ہجرت, نصیب دشمناں یاروں کا ماتم. ایک پہلو پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ پہلو ہے دوستی کا پہلو, ملنساری کا پہلو, کیونکہ دوستی میں موجود ہیں ایثار, قربانی, خلوص, مسکراہٹیں. دشمنی کبھی قریب سے بھی نہیں گزری, دشمن ضرور قریب سے گزرے لیکن آپ نے بالکل نظر انداز کیا, کیونکہ عرفی تم اندیش زغوغائے رقیباں, آواز سگاں کم نہ کند رزق کدارا. دوستی اپنے سینئرز کولیگ سے جس میں پروفیسر خالد حمید صاحب موجود ہیں, دوستی اپنے ہم اثروں سے جس کی مثال ایمرسن کے گلدستے ہیں, دوستی ہم سے جو جونیئرز کولیگز ہیں ان کے, میں اور آپ تمام اس کے گواہ ہیں, عینی شاہد ہیں اس دوستی سے. دوستی ایک فاصلے سے اپنے شاگردوں سے جو ہمیشہ گلہائے عقیدت پیش کرتے رہے سر کو, لیکن کیا کیجئے زمانہ وقت خدا ہے. خندے گل کی کل زندگی ایک گلچین کی وحشت بھری آنکھ ہے, پس عمر کا حاصل فن جسے صرف جاں کہیں کچھ نہیں, 26 سال در خدمت فن بسر کر دیم, در فقیری گزر کر دیم, بانم چشم اور آنکھ تر کر دیم, در فقیری گزر کر دیم, حرف سر کر دیم. یہ جو لفظوں کی پیغمبری ہے نہ ہوتی تو عبرت سرا میں بھلا کون جیتا. یہ 30-35 برس سے لفظوں کی نشابری کرتے آ رہے ہیں اور یقیناً کرتے رہیں گے. ہم سر کو بطور مدرس کے, بطور معلم کے ہمیشہ سنتے رہیں گے, یاد رکھیں گے. عالیہ غفار صاحبہ. السلام علیکم. ڈائریکٹر صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب, پرنسپل صاحب, وائس پرنسپل صاحب اور تمام مہمانان گرامی, آج ہمارے بہت ہی محترم اور بہت شفیق پرنسپل صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے. اور جیسے کہ سب لوگ بتا چکے ہیں, آبویسلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سر ایک بہت ہی کائنڈ اور بہت نائس پرسنالٹی کے مالک ہیں. اور سر ہم آپ کو ہمیشہ یاد کریں گے اور قدم قدم پہ آپ کو یاد کریں گے, اور ہم سب کی دعا ہے
کہ آپ اپنی آگے آنے والی زندگی میں ہمیشہ بہت خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی زندگی کی، آپ کے بچوں کے ساتھ خوشیوں والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت اور خوشیوں سے بھرپور ایک آنے والی زندگی جو ہے وہ عطا کرے. سر آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہم سب پہ ہمیشہ ایسے رویہ رکھا سب کے ساتھ جیسے شجر سایہ دار ہوتا ہے. تو سر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. شکریہ. تنویر خان صاحب سے پہلی ملاقات میری کب ہوئی؟ جب انہوں نے پرنسپلشپ کا چارج سنبھال لیا، اور بڑی عید کا دوسرا دن تھا جب مجھے ان کا فون آیا. انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تنویر صاحب میں پرنسپل سائنس کالج بات کر رہا ہوں اور میں نے آپ سے ملنا ہے. تو میں نے کہا سر میں آج تو گاؤں میں ہوں، اگر آپ کہیں تو کل میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا. اگلے دن میں سر کے گھر پہنچا تو عجیب و غریب بات ہی، سر کے سامنے دو تلخ حقیقتیں رکھی گئی جس کو سر انویسٹیگیٹ کر رہے تھے. ایک تو تنویر عالم کو جو عہدے دیے گئے ہیں ان سے ہٹا لیا جائے، اور دوسرا ایک فنکشن تھا اس کو کروایا جائے. یہ ایک ڈیمانڈ تھی جو خان صاحب سے کی گئی. یہ تلخ بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو یہ سب باتیں یاد ہوں گی. ہم نے یہ سارا بہت مشکل وقت سہا ہے. آج جو آسانیاں سب دوست دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ہمارے دوستوں کی بڑی محنت ہے. تو وہ ملاقات میری پہلی ملاقات ہے جب یہ پرنسپل بن چکے ہیں اور ان کے گھر میں ملاقات ہو رہی ہے، اور عید کا تیسرا دن ہے اور ران روسٹ کی ہوئی سامنے موجود ہے. سر مجھ سے وہ ساری باتیں پوچھنا چاہ رہے ہیں جو پچھلے 10 سال میں سائنس کالج میں ہوئی ہیں، اور میں نے وہ تمام باتیں، جو وہ تمام حقائق، وہ جو تمام مسائل، وہ جو تمام پریشانیاں، گلزار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہ ان تمام پریشانیوں کے امین ہیں، جانتے ہیں یہاں کیا کچھ ہوتا رہا. اس کے بعد سر سے بڑا قریبی تعلق ہوا. سر کے ساتھ ہم سب دوست پہلے دن سے، اور آج آخری دن ہے، نہیں آج تو رہی، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، کل ہم نے شامیاں کھانی ہے، سر کا وعدہ ہے. تو سر کو سارے تلخ حقائق جب پتہ چلے، اور اس کے بعد میرا اور سر کا تعلق بہت مضبوط ہوا، اور سر نے ان کی کوئی بات نہیں مانی، اور یہ تمام چیزیں ایز اٹ از چلتی رہی. میرا خیال ہے کسی آدمی کو عظیم بنانے کے لیے عہدے بہت بڑی چیز نہیں ہے. درگزر کرنا، معاف کرنا، انصاف یا میرٹ اس کو چھوڑیں، درگزر کرنا سب سے بڑی بات ہے. ان سب نے مل کے ہمارے سوچنے کا معیار بدلا، ہمارے سوچنے کا انداز بدلا. ہماری غلطی کوتاہیوں کو ہم نے بھولنا سیکھا. اور آج ایک ہستی ہمیں موجود نہیں ہے، ڈاکٹر ریاض الحق رامے صاحب، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. ایسے لوگ اب ہے ہی نہیں جو اپنی بات چھوڑ دیں اور دوسرے کی بات کو عزت دیں. اور یہ چیزیں ہمیں بہت چینج کیا گیا. کالج میں امن آ گیا، پرسکون ہو گیا. لیکن تنویر خان صاحب ہمارے لیے ایک مرشد کا درجہ رکھتے ہیں. ہمارے شاید والد صاحب بھی اتنے پیار سے نہ سمجھائیں جتنے پیار سے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے. تو لہذا سر ہم معذرت بھی چاہتے ہیں آپ سے، کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ یقیناً ہمارے حق میں دعا بھی کریں گے کہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. بہت شکریہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. آنریبل گیسٹ اور آج کی اس تقریب کے دلہا جناب تنویر اختر خان صاحب. گورنمنٹ کالج آف سائنس بہت سی روایات اور مشاہدات، تجربات کا گواہ رہا ہے، اور اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا. جو بھی پرنسپل گورنمنٹ کالج آف سائنس میں آیا ہے وہ اچھا ہے. لائک اور ڈس لائک کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو بھی پرنسپل آیا ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھا ہے، اپنے لیے اس نے گورنمنٹ کالج آف سائنس کے لیے بہت اچھا کام کیا. تنویر اختر خان صاحب آئے، یقین کریں ان کے ساتھ بھی وہ مزہ آیا پڑھانے کا کہ جو بیان سے باہر. محبت والا، شفقت والا، پیار والا رویہ انہوں نے ہمیشہ رکھا ہمارے ساتھ. بلکہ
बास होने का कभी एहसास नहीं होने दिया, हमेशा भाई करके बुलाया। और क्लास में राउंड पे आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ स्मूथली कंडक्शन में होती थी। तो इन्होंने जो प्यार दिया वो हम भुला नहीं पाएंगे। रात के झिलमिलाते तारे, ये चमकती हुई रोशनी, ये गाड़ियों का शोर, ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि तनवीर अख्तर खान साहब, he is the man of principle, he is the level। और इनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो चाँद जैसा। थैंक यू। तो सर से ताल्लुक़ मेरा कॉलेज से पहले मुमताज़ाबाद जब हम स्टूडेंट होते थे उस वक्त इनको एक साइकिल पे हम देखा करते थे अक्सर मार्केट में आते हुए। एक साइकिल का इनका हॉबी थी, शायद आप लोगों को अंदाज़ा ना हो। तो उस वक्त से इनका ताल्लुक़ है। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे जो है वो टीचर, तो कहते टीचर भी हम जो है इनसे पढ़े तो नहीं लेकिन सुनते रहते थे जब हम BSc में थे। तो एक बहुत अच्छा इंसान, बहुत अच्छा साथी हमसे जो है वो जुदा हो रहा है हमारे। यही बस मैं कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे और आगे भरपूर ज़िंदगी में इनको कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं पहले तो आपको बाइज़्ज़त और पुरवक़ार रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सर की बात को मैं ऑन करते हुए, आप यकीन कीजिएगा सर 2 साल आपके साथ काम किया है, आपने इतनी थपकियाँ दी हैं, इतनी थपकियाँ दी हैं, इतना सुलाया है। एक तो थपकी वो है ना जो माँ दिया करती है, और एक थपकी धोबी वाली है। अब मुझे लगता है शायद कहीं धोबी वाली थपकी का इस्तेमाल ना शुरू हो जाए। हम उस थपकी के आदी हो चुके हैं जो आपने 2 साल हमें दी है। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। यकीन कीजिएगा इतना दिल चाहता है, बहुत सी बातें हैं मेरे पास और दिल बहुत चाहता है, लेकिन सर ने आधा मिनट कहा है, इस वजह से बस यही जुमला सर। थैंक यू। अल्लाह आपको खुश रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने का। और मैंने वैसे कोई तैयारी नहीं की है, लेकिन सर वाकई बहुत अच्छे हैं। जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छे हैं। मेरी तो खैर कुल कायनात है। तो बहरहाल बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छे फादर। मतलब कभी मैंने उनसे हमेशा सीखा है हर चीज़ के बारे में। परफेक्शन हर चीज़ में उनको चाहिए होती है, और मतलब हर घर में भी बिल्कुल इसी तरह परफेक्ट हर चीज़ उनको चाहिए होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरा सलाम। अगर मैं बात करूं तनवीर खान साहब के बारे से, तो इनके साथ जो हमने टाइम गुजारा वो बहुत अच्छा गुजारा। इन जैसा प्रिंसिपल हमने नहीं देखा। बहुत ही पुरसकून, बिल्कुल किसी को कुछ ना कहने वाले। बाकी जिसने जो काम करना है वो करता रहता है, नहीं करना तो कोई भी आ जाए उसने काम नहीं करना। इनके साथ जो हमने टाइम गुजारा वो बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा और बहुत इंजॉय किया। इन्होंने हमें कभी भी कोई बात नहीं की, सुकून से रहे, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। सब्र करना और लोगों को उनकी बातों को माफ़ करना, और अच्छे से टाइम हमने इनसे गुजारा, इनके साथ गुजारा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर का कि उन्होंने हमें गाइड किया और हमें ये बताया कि हमें आगे किस तरीके से चलना है और कैसे लोगों की एब्ज़ॉर्ब करना है बातों को, और किस तरीके से लोगों के साथ मिलजुल के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, तनवीर अख्तर खान साहब, डायरेक्टर कॉलेज फरीद शरीफ साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज काजी खालिद साहब और मौजूद रफ़ीक़ान और मेहमान कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब के दूल्हा जनाब प्रोफेसर तनवीर अख्तर खान साहब हैं। तनवीर अख्तर खान साहब की आज रिटायरमेंट के सिलसिले में फेयरवेल पार्टी का अहतमाम किया गया है। पार्टी का अहतमाम गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस के स्टाफ की तरफ से किया गया है। खान साहब कॉलेज हाजा में बतौर प्रिंसिपल अगस्त 2017 में तैनात हुए। शुरू में खान साहब के मुतालिक एक तासुर पाया जाता था कि खान साहब बहुत सख्त हमगी शख्सियत के मालिक होंगे, लेकिन इस तासुर के बिल्कुल बरअक्स खान साहब बेहतरीन दोस्त, शफीक उस्ताद और कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए। खान साहब का रवैया अपने पुलिस और लोअर स्टाफ के साथ निहायत शानदार रहा। कभी किसी स्टाफ मेंबर के साथ
तजवीज़ अमेज़ रवैये से पेश नहीं आए। हमेशा कोलीग्स और लोअर स्टाफ के साथ नरम लहजे में और मुस्कुराहट के साथ पेश आए। तमाम कोलीग और लोअर स्टाफ में मोहब्बतें बांटते रहे। मेरा तदरीसी सफ़र तकरीबन 34 साल का मुहित है। मैंने अपने तदरीसी सफ़र के दौरान बहुत सारे प्रिंसिपल साहबान के साथ काम किया। इन तमाम प्रिंसिपल साहबान में से चंद एक का रवैया अपने कोलीग्स और लोअर स्टाफ के साथ दोस्ताना रहा, लेकिन अक्सर प्रिंसिपल साहबान अपने और स्टाफ के दौरान खलीग को परवान चढ़ाए। कॉलेज हाज़म में MSc क्लासेस स्टार्ट हुई केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। बाद में 2015 में प्रिंसिपल प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब ने BS क्लासेस का इजरा करवाया। MSc और BS क्लासेस के इजरा की वजह से बिल्डिंग नाकाफ़ी और स्टाफ की कमी को महसूस किया गया। मुख्तलिफ अदवार में प्रिंसिपल साहबान ने गवर्नमेंट को बिल्डिंग और स्टाफ की कमी के बारे में आगाह किया। बिल आखिर प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद इस्माइल साहब की कोशिशों और तमीर अख्तर खान साहब की डिमांड पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने BS ब्लॉक की मंजूरी दी। BS ब्लॉक का तामीर का आगाज़ 2020 में शुरू हुआ और BS ब्लॉक की तामीर अब आखिरी मराहल में दाखिल है। कॉलेज हाज़म में BS ब्लॉक का बनना इसका क्रेडिट भी खान साहब को जाता है। मैंने खान साहब को बेहतरीन दोस्त, कौन मशक उस्ताद और कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर पाया। मैं दुआ गो हूँ कि खान साहब हमेशा खुश खुर्रम रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप वक्तन फ़वक्तन इदारे के भलाई के लिए हमारी रहनुमाई फरमाते रहें। तमाम मेहमानान गिरामी और अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने इस तकरीब को रोने कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साइंस कॉलेज के तमाम स्टाफ, प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक खूबसूरत मौके पर जनाब प्रोफेसर तनवीर अख्तर खान साहब की रिटायरमेंट के मौके पर हमें याद किया है। और ये आज की तकरीब जनाब प्रोफेसर तनवीर अख्तर खान साहब के एजाज़ में सजाई गई है। जितनी बड़ी वो शख्सियत हैं, जितना बड़ा उनका कॉलेज है, जितना बड़ा उनका किरदार रहा है, जिस अंदाज से उन्होंने कॉलेज को चलाया है, तो ये तकरीब उनके शायाने शान नहीं है। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये वबा जो हमारे मुल्क में आई हुई है, उसकी वजह से हमारी बहुत सी रिवायात, बहुत से हमारे अंदाज, बहुत से तरीके वो तब्दील हो गए हैं। तो इसलिए जहाँ इतने खूबसूरत लोग, इतने मुअज़्ज़िज़ लोग, प्रोफेसर हजरात तशरीफ़ फरमा हों, तो मेरे ख्याल है उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि हम सारे उनको आज ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनको मोहब्बत पेश करने के लिए, मोहब्बतों के गुलदस्ते पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी मुलाकात 2 साल पहले जनाब तनवीर अख्तर साहब से हुई। तो ये पहली मुलाकात में मुझे कहते हैं कि आप एक शरीफ आदमी हैं, आप किस झंझट में फंस गए हैं। तो मैंने कहा कि आप भी शरीफ हैं, मैं भी शरीफ हूँ, जब जो शरीफ मिलेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो तनवीर अख्तर खान साहब की मिसेज भी यहाँ मौजूद है, हमारी भाभी। तो ये कहा गया कि किसी कामयाब मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, और मुझे यहाँ लगता है कि उनके दोनों हाथ हैं। और तनवीर अख्तर खान साहब कहते हैं कि जी शाम 6 बजे तक कॉलेज बैठे रहते थे, घर जाने को उनको दिल नहीं करता था। 8 बजे तक 8 बजे तक कॉलेज बैठे रहते थे, घर जाने को दिल नहीं करता था, और अगले दिन कॉलेज आने को दिल नहीं करता था। तो मैं ये दुआगो हूँ कि तनवीर अख्तर खान साहब ने जो 36 साल इस दरसो तदरीस में गुजारे हैं, बहुत से लोगों को उनसे फैज़ याब होने का मौका मिला, बहुत से दोस्तों को उनके साथ काम करने का मज़ा आया। यहाँ थप्पियों का दौरा रहा, कॉलेज के हालात बेहतर रहे, और जो घबरा रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं आने वाले वक्त से, तो मैं उसके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह करे वो बेहतर हालात रहें। तो मैं खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो जितना अरसा साइंस कॉलेज में रहे, उन्होंने हमारे डायरेक्टरेट कॉलेजेस के साथ माली तौर पर भी
اور بھی جہاں بھی مادی ضرورت پڑی، جہاں مین پاور کی ضرورت پڑی، جہاں بھی ان کے تعاون کی ضرورت پڑی، تو خان صاحب نے ریکٹریٹ کالجز کے ساتھ بھرپور تعاون کیا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو آئندہ کی زندگی ان کی ہے، ان کے بچے اللہ کی مہربانی سے کامیاب ہیں، خوشحال گھرانہ ہے، تو اللہ ان کی آنے والی زندگی کو خوش و خرم بنائے اور ان کا سایہ اپنی اولاد کے لیے تادیر قائم رہے. تو میں اسی سب بات کے ساتھ دعاگو ہوں، ان کی زندگی صحت کے ساتھ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. لگاتے یہ بھول گیا ہوگا کہ بھائی تم سیکرٹری بنو گے، اس کو یاد نہیں ہوگا میں نے کہا تھا کہ تم میری نوکری کے دوران سیکرٹری بنو گے، سیکرٹری ایجوکیشن بنو گے. ابھی ایک سیڑھی نیچے ہے یہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ پوری کرائے گا. بہت سی دعائیں، ڈھیروں دعائیں، آپ سب کی بہت سی تعلیموں میں. پروفیسر ڈاکٹر فرید شریف. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بڑا شکر گزار ہوں. اتنی خوبصورت محفل آپ نے اتنے خوبصورت شخص کے لیے سجائی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن حالات میں ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں، کوئی اس میں شک نہیں کہ اس سے بھی بہتر طریقے سے ہم کر سکتے تھے. لیکن جب خان صاحب نے مجھ سے بات کی فنکشن کے حوالے سے، تو پہلے پروگرام یہی بن رہا تھا کہ شاید کالج کے لان میں جو ہے، اس وقت ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ کالج کے لان میں ہم کر لیتے ہیں. لیکن اس میں پھر یہ تھا کہ آفیشلی ہم قاضی صاحب اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ شاید ہم اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں، کیونکہ ایس او پیز کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ گیدرنگ جو ہے وہ آپ نہ کریں، بے شک کالج کے لان میں ہی ہو. تو پھر یہ ڈیسائیڈ خان صاحب نے یہی کیا کہ یہاں پر ہوگا. یہاں مختصراً بڑا خوبصورت فنکشن ہے. خان صاحب نے بڑی اچھی اننگز کھیلی ہے. میں خان صاحب کو ایمرسن کالج سے جانتا ہوں. جب میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں تھا اور خان صاحب انگلش، کیونکہ ہم پڑوسی ہوا کرتے تھے، ہمارا فرنٹ ہوتا تھا اور ان کا بیک سائڈ، تو ہم اکٹھے ہو جایا کرتے تھے کسی نہ کسی بہانے سے. اور ہمارا ایک گروپ تھا 7 دوستوں کا، اور اس گروپ میں ہم اکثر شام میں کوئی نہ کوئی پارٹی کیا کرتے تھے. اور وہ ایک پارٹی مجھے آج بھی یاد ہے جو ہم نے ہرن کا گوشت کھایا تھا اکٹھے. تو وہ بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے. پھر ایک دور گزرا جب ہم دونوں پرنسپل شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے. اور اکثر اس میں جیسے آپ سب لوگوں نے یہ بات پہلے بھی سب نے ہی اس بات کی جو ہے نا وہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کا جو ایک کام لینے کا انداز ہے اور کام کو جس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ اتنا سافٹ اور اتنا ملائم انداز میں کہتے ہیں کہ جو جس بندے نے ماننا نہیں بھی ہوتا وہ بھی مان جاتا ہے. تو اس وقت میں بینگ اے پرنسپل، انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی کہ جی مجھے علی صالح چاہیے آپ کا. حالانکہ میں ارادہ تھا کہ میں کوئی اور سا ٹیچر ان کو دوں گا، لیکن انہوں نے اس طریقے سے مجھ سے فرمائش کی، میں انکار نہیں کر سکا. اور اگلے سیشن کے لیے بھی مجھے منا لیا انہوں نے. تو میں نے کہا خان صاحب میں حاضر ہوں جیسے آپ کہیں گے. تو لہٰذا بینگ اے پرنسپل بھی یہ بہت اچھے رہے ہیں. اور جب میں ڈائریکٹر بنا اور ان کے ساتھ ایز اے پرنسپل میرا کوآرڈینیشن دیکھا، تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ہر لحاظ سے آج بھی میں جو لاسٹ ان کو میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، تو وہ بھی آنے سے پہلے ان کا ایک میسیج مجھے آ گیا تھا کہ سر وہ میں نے آپ کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ پوری کر دی ہے. تو ان کا کوآپریشن ہمیشہ آفس کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے اور میں ہمیشہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کی فیملی بھی یہاں موجود ہے، ان کی فیملی سے بھی میرا فیملی کا انٹریکشن رہا ہے. اور جب میں ڈائریکٹر نہیں تھا تو جیسے بھابھی نے کہا کہ پرفیکشن کے عادی ہیں، تو اتفاق سے میں اس دن بیٹھا ہوا تھا تو ان کی بیٹی کی شادی کی البم اس دن آ گئی. تو اس ایک تصویر پہ جو فوٹوگرافر کو بلا کے انہوں نے ڈائریکشن دی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے. تو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے پرفیکشن کے خان صاحب عادی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو پتہ نہیں آپ لوگوں کے ساتھ انہوں نے ڈسکلوز کی ہے یا نہیں کی، میں نے خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد کا کیا پلان ہے؟ تو بتا دوں خان صاحب؟ کہتے ہیں میں نے ایک طبلہ لینا ہے، ایک ہارمونیم لینا ہے. اور وہ اس کا آغاز ابھی سے پیچھے سے شروع ہو گیا، جو آوازیں آ رہی ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب آپ گروپ بنائیں، جب تک میں ریٹائر ہوں گا میں بھی جوائن کر لوں گا آپ. چلو تھینک یو ویری مچ. بہرحال میں بہت ساری دعائیں ہیں خان صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آج کا دن یقیناً میری ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک بہت اہم دن، ایک سفر کا آغاز جو آج سے تقریباً 36 سال پہلے ہوا، آج اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے. اس پر بات کا آغاز بعد میں کرتے ہیں. پہلے
यकीनन अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है जो यकीनन किसी कदर दिक्कत से गुजर कर ही यहाँ पहुँचे हैं। जनाब डॉक्टर फरीद शरीफ साहब, डायरेक्टर एजुकेशन कॉलेजेस मुल्तान डिवीज़न, जनाब काजी मोहम्मद खालिद साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ज़िला मुल्तान, आप साहिबान का शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला और हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी इस महफिल के रंगो नूर में मज़ीद इजाफ़ा का बायस बने। तो मौका की मुनासबत से हर सफ़र का एक आगाज़ होता है और फिर उसका एक इख्तिताम भी होता है। अव्वलीन ज़िंदगी का सफ़र हम सब का तालीमी सफ़र होता है जो इब्तदाई चंद सालों में चलता है। फिर हम अपने पेशा वराना सफ़र का आगाज़ करते हैं जो लगभग पूरी ज़िंदगी का ही सफ़र होता है। हमारी तमाम तर कामयाबियाँ, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रिश्ते, सभी कुछ हम इसमें समेटते हैं। माशरे में अपनी एक पहचान और नाम बनाते हैं। ये तमाम तर सफ़र आम तौर पर रोशनी का सफ़र होता है। फिर एक मुख्तसर सा सफ़र उसके बाद भी होता है और ये आम तौर पर गुमनामी और तारीकी का सफ़र होता है। हम कितना ही अच्छा गुमान उसके बारे में रखें, कितनी ही कोशिश करें उसे रोशन रखने की, लेकिन बहरहाल इसकी आखिरी मंजिल तारीकी ही रहती है। दुआ है कि इस कठिन सफ़र में भी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आसानियाँ हों, आमीन। आज के दिन मेरी गुफ्तगू यकीनन मेरे रोशनी के सफ़र के बारे में है। इसका आगाज़ 1985 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिविल लाइन्स मुल्तान से हुआ, जहां अपनी सर्विस के इब्तदाई 10 साल बतौर लेक्चरर मैंने गुजारे। भरपूर जवानी के साल थे, बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ा भी और पढ़ाया भी, दीगर सरगर्मियाँ भी जारी रहीं। दोस्तियाँ बनाना और दोस्तियाँ निभाना दोनों सीखे। सिविल लाइन्स की कैंटीन उस वक्त मुबारक मझूका साहब, अनवर जमाल साहब, शौकत मुग़ल, सलाहुद्दीन हैदर, हुसैन सहर, डॉक्टर मोहम्मद अमीन जैसे इल्मी और अदबी लोगों से आबाद रहती थी। चुनांचे इनकी सोबत ने इल्म अदब से हमारी लगन को और ज़्यादा मजबूत किया। बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तकरीबन 3 साल विलायत हुसैन कॉलेज में गुजारे और उसके बाद 20 साल का एक तवील अरसा गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज मुल्तान में बसर हुआ। वहीं पर बतौर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर बतौर प्रोफेसर तरक्की पाई। बड़ी फितरी सी बात है कि जहां आपने इतना तवील अरसा गुजारा हो, वो जगह और वहां के लोग आपको बेहद अजीज हो जाते हैं। पेशा वराना जिम्मेदारियों के हवाले से भी एमर्सन का ज़माना एक बड़ा कामयाबी का ज़माना ठहरा। तकरीबन 10 साल MA और फिर नई शुरू होने वाली BS को पढ़ाया, मेहनत से और मोहब्बत से, और जवाबी मोहब्बत और तकरीम हासिल की अपने तलबा से, जो एक उस्ताद का कीमती तरीन सरमाया होती है। एमर्सन कॉलेज में भी प्रोफेसर खालिद सईद, प्रोफेसर मोहम्मद अली, शमीम आरिफ कुरैशी, असलम आरिफ और दीगर ऐसे ही बड़े लोगों की सोबत मैसर रही, जिसने जहन और सोच को नई वसतों से हमकिनार किया। और फिर 30 अगस्त 2017 को बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में तैनाती। ये एक बिल्कुल नया मोड़ था जो मेरी पेशा वराना ज़िंदगी में आया। मैं आज तक ये फैसला नहीं कर सका कि मेरा प्रिंसिपल बनने का फैसला दुरुस्त था कि नहीं। मैंने हमेशा ये दावा करने में फ़ख्र महसूस किया कि आई एम ए टीचर बाय चॉइस। सर्विस के इब्तिदा में दोस्तों की तरफ से और घर वालों की तरफ से और किसी कदर अपनी सोच के हवाले से भी जब एक तरह का दबाव था कि CSS किया जाए, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया लगा कि बस ये काम ठीक है। अपनी तबीयत और मिजाज के एतबार से और फिर CSS वाले आइडिया से दूर होते चले गए और एक मरतबा भी इम्तिहान में बैठने की जहमत गवारा नहीं की। और फिर सर्विस के इख्तितामी सालों में टीचिंग को छोड़कर प्रिंसिपलशिप को कबूल कर तो लिया, लेकिन शायद दिल से ना कर सका क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मिजाज में नहीं थी। बहरहाल पूरे खुलूस के साथ और पूरी मेहनत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। अब उसमें किस कदर कामयाब हो पाया, इसका फैसला आपकी सवाबदीद पर है। ऐसे ही याद दहानी के लिए अफसरान भी मौजूद हैं, आप लोग भी जो साथ हैं। कुछ बेहतर काम जो मैं कर पाया तस्करा कर देता हूँ। एक बड़ा मसला जिसका सामना इब्तिदा से रहा वो कॉलेज में क्लासरूम्स की कमी का मसला था। अंसारी साहब ने भी इसकी तरफ इशारा किया। BS प्रोग्राम जो 2015-16 में 5 मज़ामीन में शुरू हुआ, वो जब साल ब साल आगे चला और क्लासें बढ़ती गईं तो ये मसला इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार करता गया। चुनाचे ओपन एयर ग्राउंड में कनातें लगीं, चटाइयाँ खरीदी गईं और बिछाई गईं, कुछ कुर्सियों की खरीदारी का बंदोबस्त भी किया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट वालों को ऑन बोर्ड लेकर एक बड़ा क्लासरूम और 3 अदद नए बाथरूम बनवाए, स्टोर खाली करवाए,
स्टैट डिपार्टमेंट की एक कंप्यूटर लैब थी जो उनसे हासिल की, ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिस को क्लासरूम बनवाया, गरज जो हो सका किया, लेकिन इस सबसे बढ़कर कुछ नई बिल्डिंग के लिए भी कोशिश शुरू की। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज आप देखते हैं कि 12.5 करोड़ की लागत से एक बड़ा और तमाम जदीद सहूलतों से आरास्ता BS ब्लॉक ज़ेरे तामीर है। कॉलेज के इम्तिहानी हॉल की इलेक्ट्रिक वायरिंग जो कि 50 साल पुरानी और खस्ता थी, और सख्त गर्मियों में जब इम्तिहानात का इनेकाद होता था तो अक्सर परेशानी का बायस बनती थी, उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील करवाया और आला मेयार की प्योर कॉपर वायर से तब्दील करवाया। तमाम ट्यूबलाइट्स नहीं लगवाई और तमाम खस्ता हाल पंखे भी तब्दील करवाए। इस तमाम काम में मजहर हुसैन इलेक्ट्रीशियन और अकरम मैकेनिक की मेहनत यकीनन लायक तहसीन रही। केमिस्ट्री लैब में काफ़ी काम हुआ। केमिकल्स के इस्तेमाल के बायस प्रैक्टिकल्स में तकरीबन तमाम मेज़ें और दराजें और शेल्फ खस्ता हो चुके थे जिन्हें मरम्मत करवाया गया। तकरीबन तमाम क्लासरूम्स में बिजली के बोर्ड्स और बटन वगैरह नहीं लगवाए और जहाँ जहाँ मुमकिन था पुराने पंखे तब्दील करवाए और लाइट्स का खातिर खा इंतजाम। स्टाफ रूम और उससे मुल्हिक वॉशरूम्स में टाइल्स और नया सैनिटरी का सामान, सोफ़ों की पोशिश, वाइट वॉश, ये सब काम भी आपके सामने है। वाइस प्रिंसिपल ऑफिस, कंट्रोलर इम्तिहानात की ऑफिस और एडमिशन ऑफिस के वॉशरूम्स में सीवरेज की निकासी के मसाइल थे और ये तमाम वॉशरूम्स तकरीबन नाकाबिल इस्तेमाल थे। आज ये वॉशरूम्स मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हैं और साफ सुथरे हैं। अभी हाल ही में ऊपर की मंजिल पर मौजूद तलबा के वॉशरूम्स में सीवरेज के मसाइल की वजह से दीवारों में खौफनाक हद तक सेम आया हुआ था। चुनाचे तीनों वॉशरूम्स को तुड़वा कर नया सीवरेज सिस्टम बनवाया गया। और इसमें यहाँ ज़रूर मैं जिक्र करूँगा, अभी डॉक्टर साहब से भी ये जिक्र किया कि डॉक्टर अकील अहमद कुरैशी साहब वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी खासी स्किल रखते हैं और खासे समझबूझ उनकी। तो इस तरह के और भी कई सारे छोटे मोटे काम और स्पेशली ये जो काम थोड़ा बड़ा था बड़े अच्छे तरीके से, और एक मस्जिद का सीवरेज भी इन्होंने हमें नया बनवा कर दिया। क्लासेस ज़्यादा होने की वजह से केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश डिपार्टमेंट में असातिज़ा की कमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस है और इस हवाले से लोन और विजिटिंग बेसिस पर असातिज़ा का इंतज़ाम एक बड़ा चैलेंज था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हम मुताबरा हुए। इसमें हमें अपने हायर ऑफिस की मदद भी हासिल रही। डॉक्टर फरीद शरीफ साहब जब प्रिंसिपल थे तब भी, और अब जब वो डायरेक्टर हैं इस हैसियत से भी खुसूसी तौर पर ये हम पर मेहरबान रहे। ख़ास तौर पर CTIs की फराहमी में जितनी सीटों का हमने इनसे तकाजा किया उन्होंने कमाल मेहरबानी से पूरा किया, जिसके लिए हम यकीनन उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। अल-मुख्तसर दर्स व तदरीस के अमल में तलबा और साथीज़ा को जिस कदर सहूलत फराहम की जा सकती थी हमने उसके लिए कोशिश की और कॉलेज के निज़ाम को अहसन तरीके से चलाने का एहतमाम किया। यकीनन आप लोग जो भी हमारी थोड़ी बहुत खिदमत है इसे कबूल फरमाएंगे और अल्लाह ताला हम सबको हमारे तमाम अच्छे अमाल के बदले जज़ा अता फरमाए। प्रिंसिपलशिप के इस सफ़र में कुछ लोग जो पूरी लगन और मेहनत से मेरे साथ रहे, अपना वक्त दिया, जो भी जिम्मेदारी दी निभाई, मैं उनका मशकूर हूँ। अजलाल हैदर ज़ैदी साहब, तनवीर आलम, अदील अहमद, हबीब अहमद, ये सब लोग पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करने वाले हैं। डॉक्टर हाफिज़ अकील अहमद भी बड़ी खूबियों के मालिक हैं, जिन्होंने कंट्रोलर ऑफिस को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है और अभी जिक्र कर चुका जैसे कि तामीर और मरम्मत के कामों में बड़ी बचत और महारत से ये काम करवा लेते हैं। हाल ही में कॉलेज की मस्जिद के सीवरेज का काम बड़े उम्दा तरीके से करवाया। जनाब रिजवान भट्ट साहब डिसिप्लिन के मसाइल को अच्छी तरह से देख लेते हैं। शबीर अहमद राना साहब ने डेंगी अच्छे तरीके से संभाली हुई है और हाल ही में होने वाला एक बहुत ही अच्छा इजाफा जनाब साजिद इकबाल हैं, जो बहुत अच्छे और मेहनती उस्ताद भी हैं और दफ्तर और अकाउंट्स वगैरह के टेक्निकल मामलात की भी अच्छी समझ बूझ रखते हैं। अलावा से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं अगर अपने वाइस प्रिंसिपल जनाब आफ्ताब अहमद अंसारी का जिक्र ना करूं तो बड़ी गफलत हो जाएगी। दर्स व तदरीस के अमल में डिसिप्लिन की इंतहाई पासदारी करवाते हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करते हैं और दूसरों से भी इसकी तवक्को रखते हैं। वाह वाह, इस पे तालियां। एक बात का और तज़किरा ज़रूरी है कि मुझे अपने इस तमाम पीरियड में जो मेरा प्रिंसिपलशिप का पीरियड है, इसका मैंने पहले भी एक फंक्शन में इजहार किया कि मुझे वाइस प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे मिले। जनाब अनीस अहमद अंसारी साहब, जनाब हमीद असगर फाइक साहब और जनाब आफ्ताब अहमद अंसारी साहब,
यानी वो जो एक थोड़ी सी कमी और कोताही जो हमारे एंड पर रही, मेरे एंड पर ज़ाती तौर पर, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन साहब ने कॉम्पनसेट किया। और वो जो मॉर्निंग का सेशन था, काजी खालिद साहब या कोई और अफसर, वो जब भी आए क्लासेस यकीनन हो रही थी, मैं नहीं था लेकिन टीचर्स मौजूद थे और क्लासेस हो रही थी। और फिर उसके बाद जाहिर है कि फिर कुछ थोड़ा हम पिकअप कर लेते थे और चीज़ें अच्छे तरीके से चलती हैं। कॉलेज के निज़ाम को संभालने और चलाने में, ख़ास तौर पर एकेडमिक डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, इन तमाम असहाब ने अपना भरपूर ताउन मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं दीगर खालिसतन इंतज़ामी और दफ्तरी उमूर में किसी कदर इनमाक से काम कर पाया। तो मेरा स्पेशल थैंक्स है मेरे जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं, यानी वो जावेद फरीद आवान साहब के साथ तो बस चंद दिन और चंद महीने, और उसके बाद फिर अली अंसारी साहब तशरीफ लाए, और फिर हामिद असगर फाइक साहब, और उसके बाद फिर हमारे आफ्ताब अहमद अंसारी साहब। पता नहीं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ एक फंक्शन में कि आफ्ताब अहमद अंसारी साहब इंतहाई शरीफ आदमी, भले मानस आदमी हैं, और सिर्फ एक तवक्को ही आपसे रखते हैं कि आप अपनी क्लास बाकायदगी से पूरे वक्त के साथ पढ़ा दें। और शायद उसके और कोई भी प्रिंसिपल आपसे इसी की तवक्को रखेगा। बस थोड़ा सा ये है कि कुछ थोड़ी बहुत बरगुजर जो हम कर गए, शायद वो थोड़ी कम कर पाए। तो अगर आप अपना वो जो आपकी मिनिमम ड्यूटी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से पूरा करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आफ्ताब अहमद अंसारी साहब के साथ आपको किसी किस्म का कोई मसला होगा। तो इसमें कोई यानी परेशानी या फिक्रमंदी की बात नहीं है। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूँ कि अगर बाहर से कोई बंदा आ जाता है, और जिन कोई एक दो लोगों के नाम हम सुन रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो शायद ज़्यादा दिक्कत पड़ जाए। बेइंतहा मैं अपने आप को एक इत्मीनान की कैफियत में महसूस कर रहा हूँ, और आप लोगों की ये भरपूर जो पार्टिसिपेशन है, यकीनन मुझे इस पर बहुत ज़्यादा खुशी है। और आप लोगों का तावन बहरहाल उस प्यार मोहब्बत से मुझे जितना हासिल रहा, शायद सख्ती से इतना हासिल ना हो पाता। और वो जो एक बैड पैच आया हमारी प्रिंसिपलशिप के दौर में, वो जो मसाइल क्रिएट हुए दाएं बाएं से, मैंने देखा कि उसमें भी आप सब लोग जिस तरीके से मेरे साथ खड़े हुए, मेरा साथ दिया, कॉलेज का, अपने अदारे का साथ दिया, और वो चीज़ें फिर हमने देखा कि वो रिवर्स हुई, और वो जो एक करारदाद हमारी चली और वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची, तो उसका एक बड़ा रोल था कि भाई तमाम स्टाफ जो है वो ये चाहता है कि ये ना हो। तो बहरहाल ये यानी आप लोगों की यूनिटी, और एक तरह से अल्टीमेटली फिर सफ़र तो प्रिंसिपल नहीं करना होता है, लेकिन जिस तरीके से स्टाफ मेरे साथ खड़ा रहा, उस दिन मेरे बेटे ने भी ये बात की, तो ये यकीनन बड़ा काबिल तहसीन है। मैं इसको याद रखूँगा, मुझ पर ये एहसान है और अदारे पर भी एहसान है। अल्लाह करे कि ये अदारा हमारा इस तरह से चले, क्योंकि अमरसन इस वक्त जिस इब्तिला की कैफियत में है, और फिर हम सुन रहे हैं कि साइंस कॉलेज भी पता नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों शायद वो भी इसके साथ में आए। अल्लाह ताला हमारे अदारों को महफूज रखे, हमें महफूज रखे, और इसमें यकीनन हमारे लिए एक तकलीफ का, तंगी का पहलू होगा अगर हमारे अदारे इसी तरह से जाते रहे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।